غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو، ہاں بیلوی مولوی طفیل رضا شمسی۔ ہاں یہ بتاؤ کہ جو تم نے نہیں پہلے سنو، جو تم نے سوال کیا ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ سب مسئلے مسائل کس کے لیے، مسلمان کے لیے ہے یا کافر کے لیے ہے؟ پہلے تم اپنا مسلمان ہونا تو ثابت کرو، پہلے تو تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو گے نا، اس کے بعد نہ کوئی مسئلے مسائل پہ گفتگو ہوگی۔ ہاں پہلے تو تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو گے، دیوبندی تو ہمارے ہاں کافر ہے، ہم ان کو کافر ثابت کریں گے، تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا۔ اس کے بعد کوئی مسائل، یہ سب سنو، یہ سب جو مسائل ہے عید کے متعلق یا رمضان کے متعلق یا دیگر جو مسائل ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، تم تو کافر ہو، تو کافر ہونے کے ساتھ یہ مسئلے تم لے کر کے آتے، تو ہم تو کہتے ہیں پہلے تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو، اس کے بعد جب مسلمان ثابت ہو جاؤ گے تو تم کوئی مسئلے پوچھو، بولو، ثابت کرو گے اپنے آپ کو مسلمان۔ ہاں تو تمہاری کتاب ہے معرفت؟ نہیں، ہماری کتاب نہیں، پہلے تمہاری کتاب ہے جہاں سے تم کافر ثابت ہوتے ہو، تمہارے مولویوں کے جو مغلظات ہے، ارے سنو تو، جو تمہارے مولویوں کے مغلظات ہے، میں ان مغلظات کو پیش کرتا ہوں، ان مغلظات کے بعد ان کے اوپر کفر کا حکم لگاؤ یا ان کو مسلمان بتاؤ، پھر اس کے بعد یہ سامعین فیصلہ کریں گے۔ ارے ہے کر رہے ہو اجہل الکائنات۔ نہیں، ہماری کتاب معرفت تم کیوں پیش کر رہے ہو؟ کتاب ہے تمہید ایمان، ہماری کتاب تمہید ایمان ہے، اس کا پہلے حوالہ بھیجو گے، اس کے بعد کوئی گفتگو ہوگی نا، ایسے تھوڑی نا۔ سنو نہیں، پہلے تم اپنا مسلمان، میں پیش کر رہا ہوں، ارے میں پیش کر رہا ہوں، سنو، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اگر ختم نبوت کا جو عقیدہ تمہارے مولویوں نے ختم نبوت کے لیے جو چور دروازہ جو ہے قادیانی کے لیے کھولا ہے تمہارے مولوی نانوتوی لعنت اللہ علیہ نے، تو اس کے متعلق پہلے تم اس کو کہو کہ یہ جو یہ بولی بولا ہے وہ ایمانی بولی ہے، میں اس کو کفری بولی ثابت کرتا ہوں۔ یا مولوی تھانوی نے جو کہا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے، تم اس کو مسلمان ثابت کرو، ہم اس کو کفری بولی ثابت کریں گے۔ ابے جاہل، پہلے ان عبارت کے نزدیک، ان عبارت کے تئیں اپنے مولویوں کو مسلمان تو مان لو، ثابت تو کر، پہلے مسلمان تو ثابت کر لو، میں ان کو کافر ثابت کر رہا ہوں۔ ہمارے علماء عرب و عجم نے، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، تمام مطلب بر صغیر کے اکابر علماء نے ان کے اوپر کفر کا حکم دیا ہے انہی عبارت کے وجوہات پہ۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جب ان کو مسلمان ثابت کر دو گے، جب نہ کوئی مسئلے مسائل پہ عید کے متعلق یا رمضان کے متعلق کوئی مسئلے مسائل پہ گفتگو ہوگی، بولو۔ ختم نبوت پہ جو تمہارا مولوی ڈاکہ ڈالا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ چلو بتاؤ، اس عبارت کے متعلق تمہارا مولوی نانوتوی کافر ہے کہ نہیں ہے، بتاؤ۔ 2 منٹ بولو، میں 2 منٹ، ٹھیک ہے؟ 2-4 منٹ نہیں، اس عبارت سے ہٹو گے تمہارا گلا پکڑ لیں گے، بالکل نہیں بولا، اس عبارت سے ہٹ کر کے جاؤ گے تمہارا گلا پکڑ کے دبوچ لیں گے، اس عبارت سے بھاگنا نہیں۔ چلو پڑھو، اس کے متعلق بتاؤ، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی پہ کچھ فرق۔ اب میں جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب دو، اس کا، ہاں چلو، ہاں چلو جواب دو، بولو۔ سامعین، میں نے اس سے پوچھا، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس کا جواب دو، ادھر ادھر نہیں۔ ہم پوچھ رہے ہیں، سوال یہ ارے تم مت پوچھو، ابے اے دلے بیچ سے ہٹ، پہلے ادھر مولوی علی اصغر کو لے آؤ۔ جب تب جا کے میں بولوں گا، کب تک ہم کو بولنا دیتے ہیں؟ ہم تب بولنے دیں گے جب تم موضوع پہ بات کرو گے۔ موضوع ہے کہ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہیں آئے گا، اس کا جواب دو۔ سوال میں نے کیا نا، تم نے کیا؟ نہیں، تم سوال پہلے تم اس عبارت کے نزدیک اپنے مولویوں کو اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لو، اس کے بعد کوئی سوال کر سکتے ہو نا، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو نا۔ ہاں تو پہلے اس عبارت کے نزدیک میں تم کو تمہارے مولویوں کو کافر ثابت کر۔ ارے نہیں مت کر رہے، ارے نہیں مت کر، ابھی تو اور تیرے مولوی کافر انہی عبارت کے بنیاد پہ ہوتے ہیں، تو تو پہلے اپنے آپ کو پہلے مسلمان ثابت کر لے۔ اس عبارت کو تو کیا کہتا ہے؟ اچھا ایک بات بتا، جو میں نے عبارت پڑھی ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ
ज़माने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क आएगा नहीं आएगा, ठीक है? तो हाँ, तो ये बता, तुम्हारा दावा नहीं, ये इबारत जो है कुफरी बोली है या ईमानी बोली है? ये इबारत कुफरी बोली है या ईमानी बोली है? पहले इसका जवाब देना। देखिए सामीन, इसको अब हाथ नहीं लगा रहा है, अब इसको हाथ नहीं लगा रहा है। अबे ये इबारत कुफरी बोली है या ईमानी बोली है? पहले जल्दी बता। बल्कि अगर बिल फर्ज बादे, अबे वही तो पहले मैं तुझको मुसलमान, तो तू अपने आप को साबित कर दे। मैं वही तो पेश कर रहा हूँ कि तू मुसलमान, तो अपने आप को साबित कर दे। जब तू मुसलमान साबित हो जाएगा तो फिर आगे की बात होगी ना। रमजान के मसाइल चाहे ईद के मसाइल, ये तो मुसलमान होने के बाद की बात है ना। मैं तो कह रहा हूं कि पहले तू अपना मुसलमान होना साबित कर। अब मैं ये इबारत पेश कर रहा हूं। हाँ तो वही बता रहा। हाँ रुक जा। बल्कि अगर बिल फर्ज बादे जमाने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क नहीं आएगा। ये बोली कुफरी बोली है या ईमानी बोली है? जल्दी बता। ये बोली, हाँ इस बोली को बता, ये बोली कुफरी बोली है या ईमानी बोली है? जल्दी बता। तुम जो कहो नहीं, हम तेरे मौलवी के मुगल्लज़ात को लेकर के आए, तो तू इसको हाथ क्यों नहीं लगा रहा है? इसको क्यों हाथ नहीं लगा रहा? पहले जल्दी बता। हाँ इस इबारत को बता, ये इबारत कुफरी बोली या ईमानी बोली? सामीन जवाब नहीं दे रहा। ईमानी बोली या कुफरी बोली? मेरे सवाल पर कोई जवाब नहीं दे रहा है उसका। अरे तू सवाल लेकर के तू तो काफिर है। अबे तू अपना मुसलमान होना साबित करना। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का मुसलमान होना तुम्हारे देवबंदी अकाबिर उलमा से साबित है। तू तो अपना मुसलमान होना साबित कर। ये मैं कह रहा हूं। जल्दी बता। ये बोली बल्कि अगर बिल फर्ज बादे जमाने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क नहीं आएगा। ये बोली ईमानी बोली है या कुफरी बोली? जल्दी बता। ये बरेलवी का मुसलमान होना देवबंदी किताब साबित है ना। हाँ तुम्हें फख्र है, है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ कि देवबंदियों का मुसलमान होना बरेलवी किताब साबित है। तुम क्यों नहीं मान रहे? नहीं तो हम अब रुक। अरे हाँ नहीं, ये तुम्हारे कुफरिया अकायद के मुत्तला होने के बाद किस बरेलवी आलिम ने तुम्हें मुसलमान माना है? चल हवाला दे सामीन। अब बात आ गई है बहुत अच्छे मोड़ पे। ये अली असगर मौलवी जो है बरेलवी उलमा से अपने आप को मुसलमान साबित कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि जो इनके मुगल्लज़ात है, जो इनकी कुफरिया इबारत है, इन कुफरिया इबारत को जानने के बाद किस बरेलवी आलिम ने मुत्तला होने के बाद इनको मुसलमान माना? इसका हवाला दे। चल, तुम्हारे मुगल्लज़ात को जानने के बाद, तुम्हारे मौलवियों के मुगल्लज़ात के जानने के बाद किस बरेलवी आलिम ने तुम्हें मुसलमान कहा है? जल्दी से हवाला दे। चल वो हवाला पढ़। हाँ चल हवाला। और सुन हवाला। हाँ हवाला देने से हवाला पढ़ने से पहले हवाला भेजना पड़ेगा। ए सुन अली असगर, हवाला पढ़ने से पहले हवाला हमारे व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा। अबे जाहिल, अबे अजहलुल कायनात का, अबे तू अकफर है। सुन ए काफिर, मैं तुझको बता रहा हूं, हवाला पढ़ने से पहले हवाला तुझे भेजना पड़ेगा। इसलिए कि तेरे झूठे हवाले का जो मैंने पुलिंदा खोला है पिछले कई रिकॉर्डिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई रिकॉर्डिंग में, तो तू झूठा हवाला पढ़ेगा इसलिए कि तू कज़्ज़ाब है। तो तेरे झूठे हवाले की यहाँ पे कोई हैसियत नहीं। पहले हवाला पढ़ने से पहले तू हवाला मेरे व्हाट्सएप पे डालेगा। जानने के बाद भी मुसलमान माना है। हाँ तो चल वो हवाला पहले। अच्छा अगर तू सच्चा है तो तू हवाला भेज के क्यों नहीं पढ़ रहा है? मौलाना नकी अली खान की हयात और इल्मी व अदबी कारनामे सफा नंबर 102 में लिखता है कि सबसे अहम बात यह है कि तनाज़ा आगे लिखता है कि मौलाना नानुद्दी की तफसीर मौलाना नकी अली खान ने इंतहाई एहतियात से काम लिया और मौलाना नानुद्दी की तफसीर नहीं की। कौन कह रहा है? नकी अली। अच्छा किताब में नकी अली ने, अच्छा मौलाना नकी अली खान ने जिस वक्त ये तहरीर लिखी है उस वक्त ये तुम्हारा मौलवी मुगल्लज़ात बक चुका था। तहज़ीरुन नास की अरे सुन जो मौलाना नकी अली खान का तू हवाला दे रहा है, तो ये बता कि मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या ये तहज़ीरुन नास की इबारत जो तुम्हारे मौलवी नानोतवी लानतुल्लाह अलैह सुवर से बदतर इंसान चमार से ज्यादा जलील की, क्या वो पढ़ने के बाद हुक्म दिया है? बता जल्दी बता। हाँ तो वो अच्छा वो हवाला तू पहले मेरे व्हाट्सएप पे भेज। सामीन ये हवाला भेजता नहीं है, ये हवाला भेजता नहीं, खुद पढ़ता है। जब मैं इसे हवाले का, इसके झूठे होने का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तहज़ीरुन नास है जो मैंने इसके सामने इबारत पढ़ी है कि अगर बल्कि बिलफर्ज बादे ज़माने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क नहीं आएगा। अगर ये हवाला मुझसे मांगे तो मैं इसको हवाला दूंगा, लेकिन ये हवाला नहीं भेज सकता इसलिए कि हवाले के जरिए इसको झूठ बोलना होता है।
हाँ। मुहासिबा देवबंद देखिए सामीन, अब ये दूसरी किताब खोल दिया, अब ये दूसरी किताब खोल दिया, अब ये दूसरी किताब खोल दिया। अभी मौलाना नकी अली खान को, जो मौलाना नकी अली खान का जो ये हवाला लेकर के आया था मौलवी नानोतवी लानतुल्लाह अलैह के लिए, उसको अब छोड़ करके चला गया, कोई और किताब खोल दिया, अब कोई और किताब खोल दिया, अब कोई और किताब। अबे मौलवी मौलाना, हाँ मौलाना नानोत, हाँ तो मौलाना नानोतवी के ताल्लुक से बता, मौलाना सुन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह की किताब से जो तू कह रहा था, तो उसका हवाला छोड़ करके तू कहाँ चला गया, ये बता। तूने सवाल क्या किया मुझसे? मैंने क्या सवाल किया बता? तूने सवाल किया कि हर नकी जो मुसलमान एक काफिर नहीं कहा है, मुसलमान माना है, तो क्या उनकी इबारत को जानते थे, पढ़े थे, मुसला थे? हाँ। वही जवाब दे रहा हूँ ना मर्दूद। हाँ तो सुन तो हवाला देने से पहले भेजता क्यों नहीं है, भेजता क्यों नहीं है, ये बता। देखिए सामीन, ये भेज नहीं रहा, मैं जब से बार बार मुतालबा, ये झूठ बोलेगा। चल हसन नजर रज़वी लिखता है सफा नंबर 451 पर कि मौलवी नकी अली खान उस तहरीर से भी मुतमईन न हुए, यानी तहरीर को बताया गया था। कौन सी तहरीर, कौन सी तहरीर, कौन सी तहरीर, अबे कौन सी तहरीर के बाद क्या लिख रहा है? तहजीरुन्नास वो असर इब्न अब्बास से ही है ना, तो कह रहा है असर इब्न अब्बास की सेहत कबूल करने के बाद मौलाना मोहम्मद अहसन मुनकिर खातिमी नबीयीन ठहरते थे, यानी नकी अली के को असर इब्न अब्बास तहजीरुन्नास से वाकिफ थी, वो तहरीर इबारत पहुंची थी, उसके बावजूद नकी अली काफिर जानवी खालिद कुत्ताब अहमद काफिर का बाप ने दूसरी जबानी में जो है वो इबारत को पढ़ी थी, वो इबारत से वाकिफ था, उसके बावजूद भी नकी अली के मुताबिक इससे कहा जा रहा है कि नकी अली खान ने इंतहाई एहतियात से काम लिया और मौलाना नानोतवी की तकफीर नहीं की। हाँ अब मैं बोलूं, हाँ बोल। हाँ एक काम कर दे, वो हवाला, हाँ सुन एक काम कर दे, वो हवाला मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज दे, और दूसरी बात बता, क्या जब हाँ वो हवाला भेज दे, अरे वो हवाला भेज दे अभी, माशाअल्लाह अभी हम तुमको बता रहे हैं, तुम्हारा माशाअल्लाह मक्कार आजम। अबे अजहलुल कायनात जब मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, अब ये देखिए बीच में बोलेगा सुनेगा नहीं, जब मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने जब तुम्हारे नानोतवी की इबारत पढ़ी थी, क्या उसके कुफ्र पे मुत्तला हो गए थे, जो उसके ऊपर हुक्म कुफ्र लग गया था, मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफ़र का हुक्म आ गया था, उलमाए अरब व अजम का मौलाना अहमद रजा ने हुक्म कुफ्र जब लगा दिया था, उसके बाद मौलाना नकी अली खान ने कुफ्र का फतवा नहीं दिया। अबे जाहिल, वो इबारत पढ़ने की बात जो तुम बता रहे हो, तो क्या कोई भी इबारत कोई पढ़ करके हुक्म लगा देता? क्या ये बता कि उलमाए अरब व अजम ने, उलमाए हरमैन ने कुफ्र का फतवा दे दिया था, उस वक्त की बात है, हुक्म कुफ्र लगने के बाद की बात है, ये बता। अब अगर कोई तहरीर पढ़ करके, हाँ तो ये बता, हाँ बता, इसका जवाब दे। नंबर 102 के अब कुछ सीखेगा, नंबर 102 के लिख रहा है, मैं ऊपर से बात पढ़ रहा हूँ। सबसे अहम बात यह है कि इस तनाज़ा में उन तमाम उलमा ने जो रिहत असर इब्न अब्बास के कायल न थे, मौलाना नानोतवी की तकफीर की, मगर मौलाना नकी अली खान ने इनसे एहतियात से काम लिया। हाँ तो मौलाना नकी अली खान ने कब एहतियात से काम लिया? मौलाना नकी अली खान ने कब एहतियात से काम लिया? इसलिए सुनो, मौलाना नकी अली खान ने कब एहतियात से काम लिया? जब उन्होंने कुफ्र का हुक्म, तुम्हारे नानोतवी के ऊपर कुफ्र का हुक्म नहीं लगा था, और जब तुम्हारे नानोतवी सूअर से बदतर इंसान के ऊपर कुफ्र का हुक्म लग गया, उसके बाद, अबे भागेगा नहीं, सुन अभी मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। जब तुम्हारे नानोतवी के ऊपर कुफ्र का हुक्म उलमाए अरब व अजम ने लगा दिया, उसके बाद अभी तो तू ये कह रहा उलमाए अरब व अजम ने लगा दिया, लेकिन मौलाना नकी अली खान ने एहतियात से काम लिया कब? क्या मौलाना नकी अली खान ने ये हुक्म कुफ्र जानने के बाद एहतियात से काम लिया था, ये बता? या मौलाना अहमद रजा खान जब हुक्म कुफ्र लेकर, अरे सुन तो, अरे अजहल सुन तो, क्या जब मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उलमाए अरब व अजम से कुफ्र का फतवा लेकर के आ गए थे, तो क्या मौलाना नकी अली खान उस वक्त फतवे की तस्दीक? अबे तुम्हारे मौलवियों ने अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को आशिक रसूल कहा है, बे जाहिल, आशिक रसूल का, आशिक रसूल का है, तो जा अपने थानवी को काफिर कहना, लानतुल्लाह अलैह कहना। किसने कहा? तुम्हारे थानवी ने। कहाँ पे कहा है? हाँ मैं पढ़ूं। हाँ तो जो जहाँ पे आसिफ कहा है, हाँ, क्या तुम्हारे अहमद का कुफरिया सीखिया? हाँ अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब लाइन पे रहना, अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। ये बता कि कुफ्र का मसला क्या होता है? तहकीकी होता है या तकलीदी? जल्दी बता। कुफ्र का मसला तहकीकी होता है? जल्दी से बता। हाँ मैं इलाज कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। कुफ्र का मसला, करो तो जवाब दे। हाँ, हजरत थानवी के पास
حضرت تمہارا تو حضرت تھانوی کے پاس تمہارے احمد رضا کافر جہنمی خارج فتح زانی لوسی کی غلیظ کفریہ شرکی عبارت پہنچنے کے بعد حضرت تھانوی کو پتا تھا، اس کے بعد کیا جواب دیا؟ اچھا اب میں جواب دوں اس کا؟ اس کا جواب دیا، ہاں اسی کا جواب دیتا ہوں. یہ بتاؤ اگر کسی کے سامنے کوئی کفر کا مسئلہ پہنچ جائے کہ یہ آدمی کے پاس کفر کا یہ عبارت ہے تو اس عبارت پہ تحقیق کرتا ہے، اس کے بعد فتوا دیتا ہے کفر کا، ہے نا؟ اب بتا جو ہاں ایسا نہیں ہے. تو کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہاں کیسا ہے جلدی بتا، کیسا ہے جلدی بتا، کیسا ہے؟ ہاں بتا. کفر کا اصول یہ ہے جب کسی کے ابے ہمارے یہاں کا اصول، ابے تو اپنے مولوی کی بات کر رہا ہے اور ہمارے یہاں کا اصول پیش کر رہا ہے. ابے تو اپنے مولوی کی بات کر رہا ہے اور ہمارے یہاں کا اصول پیش کر رہا ہے. ابے جاہل. ابے اچھا یہ بتا کس کے لیے حکم پوچھ رہا ہے؟ کس کا حکم پوچھ رہا ہے؟ جلدی بتا. مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے لیے. ابے جاہل، ارے تو تمہاری درگت بناؤں ذرا سا رک جا. یہ بتا کس کے لیے حکم پوچھ رہا؟ ارے کس کے لیے؟ ارے جاہل کس لگانے کا تمہارے یہاں اصول یہ ہے محاسبہ دیوبندیت جواب مطالب. ارے جاہل کس کے لیے حکم پوچھا جا رہا ہے؟ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے لیے مولوی تھانوی کا حکم پوچھا جا رہا ہے نا. تو مولوی تھانوی تمہارا مولوی ہے نا، تو تم اپنے یہاں کا اصول بتاؤ گے، ہمارے یہاں کا اصول بتاؤ. جب ہمارے یہاں کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا تب نہ ہمارے یہاں کا اصول بتاؤ گے. تم اپنے مولوی ابے جاہل اپنے یہاں کا. دیکھیے سامعین اتنا بڑا جاہل یہ مولوی مناظر بنتا ہے، اس کو معلوم کچھ نہیں ہے. ابے ارے تو میں سن رہا ہوں تو یہ پہلے میں تجھ سے میری باری تھی نا بولنے کی، میری باری تھی نا. اب یہ بتا جب مولانا احمد رضا خان فاضل تو جب میں بول رہا تھا، جب تو بول رہا تھا تو میں خاموش تھا، جب میں بول رہا تھا تو بیچ میں کیوں بولا؟ نہیں 2-4 منٹ کی بات نہیں، پہلے یہ بتا کہ جب میں بول رہا تھا. جاہل کذاب دجال لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹا. ابھی چل یہ بتا میں تجھ سے جو تجھ سے سوال ہوا ہے. اے علی اصغری بیگم سنو ادھر بتاؤ. ارے سن اصغری بیگم یہ بتاؤ ذرا سا کہ جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اصغری بیگم کے مجدد کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، وہ کفر کا فتویٰ صحیح تھا یا غلط تھا؟ جلدی بتا. جلدی بتاؤ. پہلے سوال جواب دے. سوال کا جواب. دیکھیے سامعین یہ جواب نہیں دے رہا، یہ جواب نہیں دے گا. میں نے کیا پوچھا؟ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو تھانوی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا وہ صحیح لگایا تھا یا غلط لگایا تھا؟ ہاں یا نہ؟ جلدی بتا. ہاں یا نہ میں بول. ابے میرا سوال ہے، ابے سوال ہے یہ. سامعین یہ جواب نہیں دے گا، یہ اس کی شکست، اب یہ شکست کی طرف جا رہا ہے. میں بتا رہا ہوں اب یہ جواب نہیں دے سکتا، اب یہ جواب نہیں دے سکتا. اور میں ثابت کروں گا کہ اس کا مولوی تھانوی مکفر المسلمین، جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کو یہ مکفر المسلمین کہتے ہیں آج کے دیوبندی، اس کا مولوی تھانوی یہ سب کچھ جاننے کے بعد مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کو عاشق رسول مانتا ہے. میں یہ ثابت کروں گا. یہ مولوی جو ہے، یہ مولوی میں اس سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو تمہارے تھانوی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا وہ صحیح لگایا تھا یا غلط لگایا تھا؟ جلدی بتاؤ. حکم پوچھ رہا ہوں. نہیں 2 منٹ تو 4 منٹ چلائے گا، کچھ نہیں ہوگا. جواب نہیں، پہلے جواب دے. جواب میرا سوال ہے، میں نے سوال کیا ہے. پہلے سوال کا تو جواب دے گا. پہلے میں نے سوال کیا، سوال کا جواب دے گا. پہلے میں نہ تو چلائے گا. میں سوال کا، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تو پہلے سوال کا جواب دے، اس کے بعد میں 2 منٹ کی گفتگو. اب میں تو حسام الحرمین چھوڑ، تو جو حفظ الایمان کی غلیظ عبارت ہے اور تحذیر الناس کی غلیظ عبارت الحمدللہ رب العالمین، تو اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ لگا پائے گا تا قیامت. پوری دیوبندیت کو چیلنج، پوری دیوبندیت کو. تمہارے کہاں ثابت کیا؟ اگر بلکہ بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہیں آئے گا. اور جو تو مولانا نقی علی خان کی طرف گیا، کیا مولانا نقی علی خان نے اس کے کفر کے مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان مانا ہے؟ کیا اس کے بعد جو فتوی کفر لگ گیا، جو فتوی کفر لگا تھا، کیا اس فتوی کفر کے جاننے کے بعد بتا، کیا فتوی کفر کے جاننے کے بعد مولانا نقی علی خان نے اس کو مسلمان کہا ہے؟ یہ بتاؤ. یہ اس کا تو نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ تو جواب دے پائے گا، نہ تو وہ حوالہ بھیجا ہے، نہ تو حوالہ بھیج پائے گا. ابھی تک نہیں دے پایا. ابھی جو میرا سوال یہ ہے، ابھی میرا یہ سوال ہے کہ جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تمہارے مولویوں کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا تھا وہ صحیح دیا تھا یا غلط دیا تھا؟ اس کا یہ جواب نہیں دے رہا ہے. اس کا یہ جواب نہیں دے رہا مولوی، اس کا یہ جواب نہیں دے رہا ہے. میں نے پوچھا کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو تمہارے 4 خبیث مولویوں کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا
था वो सही दिया था या गलत दिया था, इसका जवाब नहीं दे रहा है, इसका ये जवाब ही नहीं दे रहा है। सही दिया था, हाँ तो नहीं, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, मैं तुझसे दरमियान में सवाल, मेरा हक है, मेरा हक है। अबे जाहिल मेरा हक है, अबे जाहिल मेरा हक है। एक फरीक के वक्त में जब फरीक सवाल करेगा तो उसके दरमियान मैं सवाल करता हूँ, मेरे सवाल का जवाब देना तेरा हक नहीं। मैं तू काफिर है ना, पहले तू अपने आप को मुसलमान तू कहाँ साबित कर पाए, जब तू मुसलमान साबित करेगा जब ना, तो सुन ना। नहीं तो पहले इसके अब देखो मौजू से भागा मौजू से। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो तुझको काफिर साबित कर दिया। तेरे मौलवी की इबारत मैंने पेश की, उसका दिफा किया तूने, उसका दिफा किया। मेरे पास तमहीद ईमान, देखिए इस्लामुल हरमैन, अहमद रजा लिखता है सफ़ा नंबर 8 पर कि उलमाए देवबंद की जमात ने मिलकर एक रिसाला अल मुहन्नद अल मुफन्नद ने तरतीब दिया। कमाल उसी के से ये जाहिर किया और साबित किया कि हमारे अकायद वही हैं जो अहले सुन्नत और जमात के हैं। सामीन ये फिर झूठ बोला, अगर ये हलाली होगा सामीन, मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ। अब्दुल हकीम शरफ कादरी मुकदमा लिख रहा है, उसमें लिखा है कि उलमाए देवबंद ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर अपने आप को ये जाहिर किया, साबित किया है कि उलमाए देवबंद के अकायद जो वही हैं जो अहले सुन्नत जमात के हैं। अरे मर्दूद तो फिर अब बता, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा मौलाना शरफ सुनो सामीन देखिए ये धोखा कहा दिया। मौलाना शरफ कादरी साहब किबला ने जो बात कही है अल मुहन्नद अल मुफन्नद में, इन्होंने वही अकीदे बयान किए, वही तहरीर वही तसनीफ किए हैं जो उलमाए अहले सुन्नत के अकीदे हैं, लेकिन इनका अकीदा वो नहीं है। सामीन जब इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा मौलवी थानवी ने ये गलीज इबारत अपने ये गलीज इबारत जो है लिखा है क्या नाम है हिफ्जुल ईमान में, इन्होंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद में पूरे के पूरे तब्दील कर दिया, नानोतवी की इबारत को पूरे के पूरे तब्दील कर दिया, गंगोही की पूरी इबारत को तब्दील करके अल मुहन्नद अल मुफन्नद में वही अकीदे। हाँ मैं बता रहा हूँ सुन ले तू, जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो हकीम शरफ कादरी की जो तूने बात की, मैं उसका जवाब, हाँ मैं उसका जवाब पहले उसका जवाब ले ले हकीम शरफ कादरी का। सामीन इससे पूछा जाता है फतावा रशीदिया में, इसके मौलवी से पूछा जाता है रशीद अहमद गंगोही से कि मौलवी अब्दुल वहाब नजदी के मुतालिक क्या अकीदा है देवबंदियों का। जब मौलवी अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से अकीदा पूछा जाता है रशीद अहमद गंगोही से, तो फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही कहता है कि वो हम्बली मसलक के हैं और उनके मानने वाले जो है वो वहाबी कहलाते हैं, उनसे जो है सिर्फ जो है अकीदे का कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुसलमान है, उसको मुसलमान मानता है। लेकिन जब उलमाए हरमैन जब सवाल करते हैं, जब उलमाए हरमैन सवाल करते हैं इनके मौलवियों से अल मुहन्नद अल मुफन्नद में, जब उलमाए हरमैन सवाल करते हैं कि बताओ मौलवी अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से तुम्हारा क्या अकीदा है, तो ये क्या बयान करते हैं सामीन, उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा बयान करते हैं कि जो साहिबे दुर्रे मुख्तार का हुक्म है वही हुक्म जो है मेरा भी है। अब्दुल वहाब नजदी के हवाले से क्या कहते हैं कि जो साहिबे दुर्रे मुख्तार का हुक्म है वही हुक्म जो है मेरा भी है। और इनका मौलवी जो है रशीद अहमद गंगोही फतावा रशीदिया में जो है कहता है कि उसके मानने वाले जो है बिल्कुल सही है, ये है वो है फलाना है ढिमाका, बहुत अच्छा कहता है। और जो है अल मुहन्नद अल मुफन्नद में क्या कहता है, जब पूछा जाता है कि क्या नाम है मौलवी अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से क्या अकीदा है, हाँ इसी का जवाब दे रहा हूँ। हकीम शरफ कादरी के जो तूने हवाला दिया है अल मुहन्नद अल मुफन्नद को तूने साबित किया है कि उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा, तो बिल्कुल तुम लोगों ने उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया, लेकिन अपनी किताबों में कुछ लिखा है, अल मुहन्नद में कुछ लिखा है। मैं इसको साबित कर रहा हूँ। देखो फतावा रशीदिया में सवाल होता है मौलवी अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से कि अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से क्या अकीदा है, तो तुम्हारा मौलवी रशीद अहमद गंगोही कहता है, हाँ इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए सामीन अब ये सुन नहीं रहा है, तो जब इसका जवाब मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, रशीद अहमद गंगोही इसका जो है जवाब देता है। मैं बता रहा हूँ सामीन, रशीद अहमद गंगोही अल मुहन्नद, अरे अबे आला हजरत के जमाने में तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद छपी ही नहीं है, तू तो इसी झूठ बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ अल मुहन्नद अल मुफन्नद को इसका झूठा साबित कर रहा हूँ सामीन। अब ये देखिए भागेगा कसम खुदा की। अब ये सामीन देखिए मैं तो काफिर साबित कर रहा हूँ, तुझे सुन तो सामीन। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, इसको बड़ी खामोशी से सुने। अल मुहन्नद अल मुफन्नद के ताल्लुक से मैं बता दूं कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद के ताल्लुक से इसका अल मुहन्नद अल मुफन्नद किस कदर झूठा है और उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया, मैं ये साबित कर दूं सामीन। जब इससे पूछा जाता है फतावा रशीदिया में, इसके मौलवी रशीद अहमद गंगोही से पूछा जाता है कि मौलवी अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से तुम्हारा क्या अकीदा है, तो इसका रशीद अहमद गंगोही फतावा रशीदिया में जवाब देता है कि उसके मानने वाले को हम्बली मसलक का था और उसके मानने वाले को वहाबी कहते हैं। अकीदे में कोई इख्तलाफ नहीं है, अकीदे में से हमारा कोई
कोई झगड़ा नहीं है, बस जो है उसके मानने वाले को वहाबी कहा जाता है। यानी अकीदे में रशीद अहमद गंगोही के यहाँ मौलवी अब्दुल वहाब नजदी मुसलमान होता है, लेकिन जब उलमाए हरमैन के पास सवाल जाता है तो उलमाए हरमैन सवाल करते हैं अल मुहन्नद अल मुफन्नद में कि बताओ कि अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से तुम्हारा क्या अकीदा है। तो ये इनका मौलवी जो है क्या नाम है खलील अहमद अम्बेटवी कहता है कि जो साहिब दुर्रे मुख्तार का हुक्म है, साहिब दुर्रे मुख्तार ने जो हुक्म दिया है मौलवी अब्दुल वहाब नजदी पे वो वाजिबुल कत्ल है, और वो जो है क्या नाम है काफिर है, और वो खारजी है, उसके ऊपर खारजी और काफिर का हुक्म लगाते हैं। लेकिन सामीन और फतावा रशीदिया में कुछ लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है तुमने अल मुहन्नद अल मुफन्नद को तो वही अकीदा बनाया ना, वही अकीदा बताया ना जो उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा था। तो हकीम शरफ कादरी साहब ने तो जो बात कही वो बिल्कुल सही कही है कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो है वो उलमाए अहले सुन्नत के अकीदे के मुताल्लिक किताब लिखी गई है। हमें मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सामीन सुन लेंगे। अबे तुम्हारे सवाल का मैंने तुमने हकीम शरफ कादरी का जो तूने हवाला दिया था उसको चुटकी बजा करके मैंने फुर कर दिया, चुटकी बजा के मैंने फुर कर दिया, चुटकी बजा करके। पहले हकीम शरफ अच्छा पहले सुन, हकीम शरफ कादरी का पहले तूने हवाला हकीम शरफ कादरी का दिया था ना, पहले हकीम शरफ कादरी का हवाला दिया था, हकीम शरफ कादरी का हवाला दिया था कि नहीं दिया था, पहले ये बता। सामीन देखिए अब ये भाग रहा, अब ये आ नहीं सकता, टिक नहीं सकता, ये टिक नहीं सकता है। हेलो अबे हकीम शरफ कादरी के हवाले से तू अबे डींगे मत मार, तुम्हारी तो वो खटिया खड़ी हो गई। अभी तुम्हारे हवाले को मैंने हवा हम मंसूरा कर दिया, झूठा साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने तुम्हारे हवाले को झूठा साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम शरफ कादरी का तूने हवाला, अबे तूने हकीम शरफ कादरी वाले हवाले को क्यों नहीं हाथ लगा रहा है? देखिए सामीन भाग रहा है। अबे हकीम शरफ कादरी वाले हवाले के लिए तू क्यों मर रहा है हकीम? अबे मैं औकात तो तुम्हारा थानवी मर के मिट्टी में मिल गया, उससे मेरी वो मेरे सामने बराबर नहीं था। अबे तुम्हारा थानवी मर के सुअर से बदतर इंसान चमार से ज्यादा जलील होकर के मर गया। एक किताब है, मैंने जब हक़ुल मुबीन का हवाला दिया तुमको, मुझे देवबंदी को मुसलमान साबित किया है। अल हक़ुल मुबीन मानते हो? अल हक़ुल मुबीन हवाला खोल लेने दे। हाँ मैं अल हक़ुल मुबीन निकाल लेता हूँ, उसके बाद तू हवाला पढ़। ऐसी लाइन पे रह, अल हक़ुल मुबीन खोलता हूँ, लाइन पे काटना मत, मैं हवाला निकाला। नहीं अल हक़ुल मुबीन पर अभी देखिए भाग रहा है। अल हक़ुल मुबीन क्यों भाग रहा है? अल हक़ुल मुबीन पे क्यों भागा? देखिए सामीन जब मैं किताब खोलने की बात कर रहा, मैंने किताब खोलने की बात की, अभी भागने लगा। अल हक़ुल मुबीन के हवाले से जो किताब मेरे पास थी जब मैंने खोलने की बात की, अभी भागने लगा, अब ये भागने लगा। अबे अल हक़ुल मुबीन में ही मैं साबित करूंगा कि हम हर देवबंदी को काफिर नहीं कहते हैं। मैं हर अल हक़ुल मुबीन देखिए सामीन अब ये भागा। अल हक़ुल मुबीन का जो तू हवाला देगा मैं वहीं पे तुम्हारी गिरफ्त करूंगा। अल हक़ुल मुबीन का हवाला दे। अल हक देखिए सामीन अब ये हंस रहा है, बेहया की तरह हंस रहा है। देख तूने दो हवाला पेश किया, एक हवाला पेश किया हकीम शरफ कादरी साहब का, मैंने उसको हवा हम मंसूरा किया, बीच में तू अभी तमहीद ईमान ये बता आला हजरत के जमाने में अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी गई, ये बता। अल मुहन्नद अल मुफन्नद आला हजरत के जमाने में लिखी गई, तू झूठा हवाला पेश करता है, मैं वही तो साबित कर रहा हूँ। अल हक़ुल मुबीन के हवाले से क्यों मरा? अल हक़ुल मुबीन जो तू अभी देखिए सामीन खुदा की कसम अब ये भागा। अल हक़ुल मुबीन का हवाला भी पढ़ने जा रहा था, जैसी मैंने किताब खोलने की बात की ये जान गया कि हमारी धप्पलबाजी पकड़ ली जाएगी, चोरी पकड़ ली जाएगी, अब ये मर रहा है। अब समीर भाई इसको रिकॉर्ड करते रहेगा। अल हक़ुल मुबीन का हवाला देखिए सामीन देखिए अल हक़ुल मुबीन का अब नहीं खोल रहा है, अब अल हक़ुल मुबीन नहीं पढ़ेगा, अब नहीं पढ़ेगा अल हक़ुल अच्छा तो अल हक़ुल मुबीन का नाम क्यों लिया मरदूद? अल हक़ुल मुबीन का नाम क्यों लिया? तमहीद ईमान के मुतालिक मैं अभी मैंने तुम्हारे दो हवाले को झूठा साबित कर दिया। तूने सुन्नत का हवाला दिया, वो तो तू पहले तू अपना मुसलमान होना साबित करेगा, मुसलमान होना साबित करेगा। जब मुसलमान हो जाएगा साबित तो तू किसी मुसलमान के मसले को लेकर के आएगा। तू अल हक़ुल मुबीन अबे अल्हम्दुलिल्लाह तू एक भी नहीं साबित कर पाए। मैंने तुम्हारे हर दलील को हवा हम मंसूरा कर दिया है। अल हक़ुल मुबीन क्यों नहीं पढ़ रहा? अल हक़ुल मुबीन पढ़। अभी अल हक़ुल मुबीन तू अभी अल हक़ुल मुबीन का नाम लिया ना, अभी अल हक़ुल मुबीन का तूने अभी देखिए सामीन मर रहा है। अबे अल हक़ुल अबे तुम्हारे दो अच्छा अल हक़ुल मुबीन वो तो तू मुसलमान होने के तू मुसलमान जब साबित कर लेगा अपने आप को तब वहां पढ़ेगा, मुसलमान साबित हो जाएगा। देखिए सामीन अब ये जवाब अच्छा रुक ऐसा है। हेलो तमहीद ईमान का कौन सा सफा पढ़ा? ए मौलवी अली असगर
उसी माह की उसी तारीख को उसी की यादगार के तौर पर जश्न मनाया जाता है। सामीन ये इसका पहले तालिब इल्म इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो किस कदर खुश हो जाता है। ये चला उधर अल हक़ुल मुबीन का हवाला ये नहीं पेश करेगा। मौलवी हकीम शरफ कादरी साहब का इसने हवाला पेश किया। जब मैं इसके दलाइल को हवा हम मंसूरा किया, इसका कोई जवाब नहीं दिया। अल हक़ुल मुबीन का ये हवाला नहीं दे पाया। अल हक़ुल मुबीन का ये हवाला नहीं दे पाया। जैसे मैंने कहा कि अल हक़ुल मुबीन का हवाला नहीं दे पाया, चल तमहीद ईमान भी पढ़, मैं तमहीद ईमान निकालता हूँ। अली असगरी बेगम तमहीद ईमान खोल, तमहीद ईमान खोल। असगरी बेगम तमहीद ईमान खोल, तमहीद ईमान खोल। असगरी बेगम तमहीद ईमान खोल। वो तू जब मुसलमान अपने आप को साबित करेगा तब वो मसला लेकर के आएगा। असगरी बेगम तमहीद ईमान, अब तमहीद ईमान खोल, दो तमहीद ईमान खोल। तमहीद ईमान का सफा नंबर बता। तमहीद ईमान देखिए सामीन, तमहीद ईमान भी नहीं पढ़ेगा। अब ये तमहीद ईमान भी नहीं पढ़ेगा। ये तमहीद सामीन फैजान सुन्नत के मुतालिक तो ये तमहीद ईमान पढ़। तमहीद ईमान में खोलता हूँ, तमहीद ईमान पढ़, सफा नंबर बता। तमहीद ईमान सफा नंबर, तमहीद ईमान सफा नंबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने मौलवी हकीम शरफ कादरी साहब के हवाले को इसका हवा हम मंसूरा किया। फिर उसके बाद क्या नाम है अल हक़ुल मुबीन का जो ये हवाला दे रहा था झूठा, इसको भी मैंने हवा हम मंसूरा किया। अब ये तमहीद ईमान के मुतालिक मैं कह रहा हूँ, तो तमहीद ईमान नहीं। जब मैंने इसको कहा है कि फैजान सुन्नत जब तू पेश करेगा, जब तू अपना मुसलमान होना साबित कर देगा, तू तो मुसलमान ही नहीं है, मैं ये साबित कर चुका हूँ। एक भी हवाला नहीं दे पाया। मुसलमान साबित है कहाँ से? फैजान सुन्नत है। अल हक़ुल मुसलमान होना कहाँ से साबित किया है? 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 साबित तो करेगा जो मुसलमान, उसको साबित किया जाता है कि सामने जो मुसलमान तो काफिर है। अबे तुम्हारे मौलवी हमको मुसलमान मानते हैं बे, तुम्हारा मुजद्दिदे मरीज़े मिल्लत हमको मुसलमान और आशिक़े रसूल मानता है बेवकूफ। हमारे पीछे नमाज पढ़ने को जायज कहता है। अबे तुम्हारा मुजद्दिद मरीज़े मिल्लत जब इस मसले पे बात करना चाहा तो इसका मुंह बंद हो गया। जब इस तुम्हारा मरीज़े मिल्लत हमको मुसलमान और आशिक़े रसूल मानता है। तुम्हारा मरीज़े मिल्लत अशर्रे फेली थानवी लानतुल्लाह अलैह, सुअर से बदतर इंसान, चमार से ज्यादा जलील, वलदुज़ ज़िना, वो हमको मुसलमान और आशिक़े रसूल मानता है। तू कौन होता है बे? तू वो तो मुझे मुसलमान और आशिक़े रसूल मानता है। मैं बता रहा हूं काफिर किस तरह होता है। हाँ तो पहले इसका जवाब दे कि अल हक़ुल मुबीन और तमहीद ईमान कब पढ़ेगा? सुन वो काफिर को कोई हक नहीं है कि हमको सवाल करे कि हम मुसलमान है या नहीं। अबे तुम्हारा मरीज़े मिल्लत मानता है वो। तू तो जिद पे आया है कि मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने तुम्हारे मौलवियों को काफिर कह दिया है, तो अब तुम लोग को कोई ठिकाना नहीं मिलता है, तो अब मुगल्लज़ात बकने के लिए तुम मौलाना अहमद रजा को काफिर कहो। ये तो तुम तो जिद पे आए हो। मैं तुझसे जो सवाल करता हूँ, मेरे सवाल का जवाब, एक भी सवाल का ये जवाब नहीं दे पाया। अबे जब तुम्हारे बड़े बड़े अकाबिर हमको मुसलमान और आशिक़े रसूल मानते हैं, तो तुझे काफिर कहने का हक किसने दिया? इस्लामी का जो है ये पानी है और इसको मोतबर मानते हैं ये लोग। ये देखिए फैजान सुन्नत तो तू तब पेश करेगा जब तू अपना मुसलमान होना साबित कर दे। पहले तू अपना मुसलमान होना तो साबित कर। सामीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए अब ये गुफ्तगू ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। इसके सामने मैंने तहज़ीरुन नास की इबारत पढ़ी। इसने हजरत अल्लामा मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया कि उन्होंने मुसलमान माना है, उन्होंने जो है मौलवी नानोतवी के लिए कुछ हुक्म नहीं लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने बताया कि उलमाए अरब अजम के कुफ्र पे मुत्तला होने के बाद जो उन्होंने कुफ्र का फतवा दिया था, उस कुफ्र से मुत्तला होने के बाद जो अगर मौलाना नकी अली खान ने मुसलमान माना है तो वो दलील दे। ये दलील नहीं दे पाया, नंबर एक। नंबर दो, फिर मैंने जो है इसके सामने जो इसके मौलवी की इबारत रखी, थानवी के मुतालिक पूछा कि जो मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को वो मुसलमान मानता है, आशिक़े रसूल मानता है, मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को मुसलमान और आशिक़े रसूल मानता है, तो ये कहता है कि मौलाना अहमद रजा खान की कुफरिया शिरकिया इबारत जो है थानवी के पास नहीं थी, इस वजह से जो है उन्होंने मुसलमान और आशिक़े रसूल कह दिया। फिर मैंने इससे सवाल किया कि ये बताओ जब मौलाना अहमद रजा खान ने तुम्हारे अकाबिर मौलवियों के ऊपर कुफ्र का फतवा दिया था, वो सही दिया था या गलत दिया था? इसका भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। हकीम शरफ कादरी के हवाले से जो है इसने हवाला पेश किया कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो है देवबंदियों ने उलमाए अहले सुन्नत के अकीदे को बताया है। ये भी मैंने बताया कि उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी कहता हूँ कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद में देवबंदी मौलवियों ने उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा गढ़ा
पढ़ा है, लेकिन इनकी किताबों में कुछ है। फतावा रशीदिया में पूछा जाता है मौलवी रशीद अहमद गंगोही से कि मौलवी अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से तुम्हारा क्या अकीदा है, तो ये बताता है इनका मौलवी रशीद अहमद गंगोही फतावा रशीदिया में कि मौलवी अब्दुल वहाब नजदी को जो है हम लोग वहाबी कहते हैं, उनके मानने वाले को वहाबी कहते हैं, उनका मसलक हम्बली था, वो मुसलमान था, सब कुछ कहता है। जब उसके बाद फिर अल मुहन्नद अल मुफन्नद में पूछा जाता है कि मौलवी अब्दुल वहाब नजदी के ताल्लुक से तुम्हारा क्या अकीदा है, उलमाए हरमैन पूछते हैं, तो इनका मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी जो है फतावा रशीदिया को जो है हवा हम मंसूरा करते हुए अल मुहन्नद अल मुफन्नद में कहता है कि मौलवी अब्दुल वहाब नजदी जो है वो खारजी है और जो साहिब दुर्रे मुख्तार का हुक्म है वही मैं हूँ, मेरा भी हुक्म है। इसके बाद मैंने साबित किया कि जो उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा था वो तुम्हारे मौलवियों ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद में गढ़ा है, मैंने ये साबित कर दिया है। अब आगे की बात, इसने जो है अल हक़ुल मुबीन का हवाला नहीं पेश किया। अल हक़ुल मुबीन का ये हवाला क्या पेश करता, जान गया था कि ये मेरी चोरी पकड़ ली जाएगी। अल हक़ुल मुबीन का इसने हवाला नहीं पढ़ा। इसके बाद तमहीद ईमान के मुतालिक मैंने कहा कि तमहीद ईमान पढ़, तमहीद ईमान का सफा नंबर बताइए, तमहीद ईमान नहीं पढ़ा। अल हक़ुल मुबीन में खोल लूं, रुक जा। पहले हवाला मैं मुझे खोल लेने दे, अभी तुम्हारा इलाज करता हूं। तो जब मैं फैजान सुन्नत हवाला देने गया, अल हक़ुल मुबीन मर क्यों रहा है? सामीन देखिए, अब अल हक़ुल मुबीन में खोल रहा हूं, सफा नंबर बता। अल हक़ुल मुबीन का सफा नंबर बता। और बात पूछ रहा, वो तो सुन। अल हक़ुल, वहां बात हो गई है कि वहां तुम मुसलमान जब अपने आप को साबित कर लेगा। सामीन मैंने इतनी सारी गुफ्तगू, ये सारी तमहीद पेश कर दी है, चिल्ला चिल्ली करेगा। अब इसके पास इसका इलाज हो चुका है। हाँ, सफा नंबर बोल, सफा नंबर अल हक़ुल मुबीन का सफा, अल हक़ुल मुबीन जब हवाला दिया तो उस वक्त ये सामीन, हाँ ये जानता है, अब जो जानता है कि अल हक़ुल मुबीन में तुम्हारी चोरी पकड़ ली जाएगी। अल हक़ुल मुबीन में तू झूठा वाला पेश करेगा, तुम्हारी चोरी पकड़ ली जाए। अच्छा, मतलब फैजान सुन्नत तुम्हारी चोरी पकड़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फैजान सुन्नत के मुतालिक मैंने बता दिया कि जब तुम अपना मुसलमान होना साबित करोगे तो फैजान सुन्नत के मुतालिक जो तुम्हारा केस पर यहाँ पे क्यों नहीं है? हाँ, तो अल हक़ुल मुबीन मैंने पेश किया। हाँ, अल हक़ुल मुबीन में तू कह रहा है ना कि मैं अपने आप को मुसलमान साबित करूंगा, तो मैं अल हक़ुल मुबीन खोलता हूँ, मैं अल हक़ुल मुबीन खोल लेता हूँ, मैं उसमें बता देता हूँ, उसका मफ़हूम बता देता हूँ। जाहिल, अल हक़ुल मुबीन में जो उन्होंने लिखा है, साहिब किताब ने, उन्होंने ये लिखा है कि हम हर देवबंदी को काफिर नहीं कहते हैं, नेचरियों को और क्या नाम है नदवियों को या लखनऊ वालों को मैं काफिर, हर देवबंदियों को काफिर नहीं कहते। किसको काफिर कहता है? जो वो देवबंदी जो तुम्हारे जैसे देवबंदी तुम्हारे थानवी की इबारत के कुफ्र पे मुत्तला होने के बाद नानोतवी की, तो तू अल हक़ुल मुबीन में ये कहाँ लिखा है? हाँ, तो अल हक़ुल मुबीन में ये कहाँ लिखा है कि तुम, हाँ तो मैं ये लिखूंगा। चल वो किताब का हवाला मैं जहां से कहता हूँ पढ़, सफा नंबर बता। हेलो, सफा नंबर बात लिखा हुआ है कि जो है जो उसका काबे के कुफर के जानने के बाद से मुसलमान मानते हैं ना। हाँ, मैं सफा नंबर खोल, कौन से सफा, तू कौन अल हक़ुल मुबीन का कौन सा सफा पढ़ रहा है? रुक जाए, अभी रुक, अभी हम तुम्हारा इलाज करते हैं कि वो कहाँ लिखा है कि जो है हर देवबंदी मुसलमान है, ये भी तू बता। देखें, जब मैंने फैजान सुन्नत अब ये भागा, अल हक़ुल मुबीन अब नहीं खोलेगा। अब अल हक़ुल मुबीन देखिए सामीन, अब अल हक़ुल मुबीन नहीं खोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अल हक़ुल मुबीन नहीं खोल रहा है, अब अल हक़ुल मुबीन नहीं खोल रहा है। हेलो, हाँ रुक, मैं अल हक़ुल अभी मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। सफा नंबर बोल, अल हक़ुल मुबीन का सफा नंबर बोल। 25। हाँ, 25। रुक, लाइन पे रहे। अल हक़ुल मुबीन किताब निकालने दे। 2-3 का हवाला दिया, मारिफत का हवाला दिया, समझा? अभी तू कोई हवाला एक हवाला हल करते जा। अभी मैंने मारिफत का हवाला दिया। अबे एक मारिफत भी पढ़ना, मारिफत भी खोल, अभी अल हक़ुल मुबीन खोल लेते हैं। मारिफत भी साथ में खोल, अभी अल हक़ुल मुबीन खोल लेते हैं। अभी चिल्ला मत। देखिए सामीन, अब ये पढ़ने दे नहीं दे रहा है, और अब ये पढ़ने नहीं दे रहा। अल हक़ुल मुबीन पहले पढ़ लेने दे, अल हक़ुल मुबीन। फिर देखिए सामीन, ये देखिए अल हक़ुल मुबीन नहीं पढ़ने दे रहा है। मारिफत से क्यों? मैं अल हक़ुल मुबीन पढ़ रहा हूँ, अल हक़ुल मुबीन सामीन, अल हक़ुल मुबीन दोनों कैसे एक साथ पढ़ेगा? जाहिल कोई, जाहिल दोनों कैसे खोल देगा कोई? मेरे पास है कि नहीं? मैं अल हक़ुल मुबीन, अभी अल हक़ुल मुबीन पे तुम्हारी पिटाई कर देना। रुक जा, अभी अल हक़ुल मुबीन पे तुम्हारी हम पिटाई कर दे। दोनों देखिए मैं अल हक़ुल मुबीन खोल रहा हूँ, अब ये खोलने नहीं, अब ये पढ़ने नहीं रहा।
पहले अल-हक़्क़ुल मुबीन को हल कर लेना। मैंने जितनी किताबों का हवाला है सब खोल, फैजान सुन्नत भी खोल, मैं सारी किताबों के मुतालिक बात, फैजान सुन्नत भी खोल, पहले फैजान सुन्नत भी खोल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब तुम्हारी एक बुराई जाएगी, सिर्फ विदाई करूंगा। अभी तुम्हारी वो दुर्गत मारिफत खोलो, अभी तू घबरा मत, तुम्हारी वो मारिफत खोलो, मारिफत, अभी अल-हक़्क़ुल मुबीन निकालने देवे जाहिल। मारिफत खोलो, मारिफत, अल-हक़्क़ुल मुबीन मर क्यों रहा है रे? मारिफत भी खोलेगा, मुताले बिल भी खोलेगा। अभी अल-हक़्क़ुल मुबीन पढ़ने दे, उसके बाद मैं मारिफत भी खोला। मारिफत भी खोल, मारिफत भी खोल, अल-हक़्क़ुल मुबीन पहले फैजान सुन्नत भी खोल, सब खोलेंगे, सब खोलेंगे, पहले अल-हक़्क़ुल मुबीन खोल लेने दे। हाँ खोल, फैजान पहले अल-हक़्क़ुल मुबीन, पहले अल-हक़्क़ुल मुबीन, फैजान सुन्नत खोलो, फैजान हाँ, सुन्नत, अल-हक़्क़ुल मुबीन पहले खोल लूं, रुक जा। फैजान सुन्नत खोलो, फैजान सब सुन्नत, खुलेगा बेटा, घबरा मत मौलवी। फैजान सुन्नत, नहीं इस तरह नहीं, सब खोल के हमसे बता मुझे कि हाँ मैं सब किताब पढ़ के बर रहा है। किताब मैंने पढ़ी, सब खोल के बता कि हाँ मैं ही खोलूं। हाँ चल, अब ले 25 से सब तूने बात की थी, वो 25 मैं क्या बोल रहा हूँ, फैजान सुन्नत खोलो, फैजान मैं सुन्नत, पढ़ रहा हूँ अल-हक़्क़ुल मुबीन, फैजान सुन्नत, फैजान सुन्नत, अल-हक़्क़ुल हवाला पढ़ रहा हूँ। अब ये मौलवी असगर पढ़ने नहीं दे रहा है। मारिफत खोलो, हाँ, अब ये हवाला सुन और मरते जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन क्या है इसमें लिखा है, सफा नंबर 24 पे, हमारा मसलक, मसले तकफीर में हमारा मसलक हमेशा से यही रहा है, जो शख्स भी कलमे कुफ्र बोल कर, कलमे कुफ्र बोल कर, देखिए ये क्या पेश करने वाला था, इसने 25 का हवाला दिया था, मैं 24 से पढ़ रहा हूँ, 24 से जो पढ़ रहा हूँ। अब ये देखिए मसले क्या है, मसले तकफीर में हमारा मसलक हमेशा से यही रहा है कि जो शख्स भी कलमे कुफ्र बोल कर अपने कौल, ठीक है, हाँ रुक जाओ, रुक, अपने कौल या फेल से इल्तिजाम कुफ्र कर लेगा तो हम उसकी तकफीर में तामुल नहीं करेंगे। क्या बोला रे जाहिल, ए जाहिल, असगरी बेगम क्या बोला, किसके जो कलमे कुफ्र बोल, मारिफत नहीं, अल-हक़्क़ुल मुबीन है, अल-हक़्क़ुल मुबीन, अल-हक़्क़ुल मुबीन, अल-हक़्क़ुल मुबीन है, अल-हक़्क़ुल। सामीन अभी अल-हक़्क़ुल मुबीन इसने कहने के लिए सफा नंबर 25 बोला, मैं पढ़ रहा हूँ, जब पहले ये इबारत पढ़ लेने दे, उसके बाद मारिफत भी खोली जाएगी। हाँ अब मैं पढ़ता हूँ, खामोशी से सुन, बोलेगा नहीं, हाँ खामोशी से सुन। हमेशा से यही रहा है, भी कलमे कुफ्र बोलकर अपने कौल या फेल से इल्तिजाम कुफ्र कर लेगा, हाँ उसके तो हम उसके तकफीर में तामुल नहीं करेंगे। हाँ तो अपने कौल से पर इल्तिजाम कुफ्र किसने किया है? हाँ मैं बता रहा, इल्तिजाम कुफ्र मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने तुम्हारे मौलवियों की इबारत पे इल्तिजाम कुफ्र किया। अपने